In previous lecture, we have discussed about the spinning body. We have discussed about the resonance nuclear spin that has been discussed. How the nucleons they are behaving or they are spinning inside the nucleus. How the vector addition of those spins takes place. That preliminary discussions have been done. In all of this, the review is that a spinning charged body generates a magnetic field. A spinning body is having the angular momentum known as the spin angular momentum. The angular momentum, it is linked with the angular quantum number that is given as I. So I is equal to I into I plus 1 plus into h upon 2 pi. That are the quantum calculations. Then that is the spin angular momentum. Then that spinning body is just like a current loop, so it is also generating a magnetic field. How to measure that magnetic field? That is measured in terms of the pole strength. Just like the electrical dipoles, Q positive and Q negative separated by a distance, in the same sense M positive and M negative or north and the south pole which are separated by a distance, that is measured in terms of the magnetic dipole moment. That is measured in terms of the magnetic dipole moment, mostly said as magnetic moment. Then that magnetic moment is equal to its spin angular momentum, and it is being equated by a factor that is termed as the gyromagnetic ratio. That gyromagnetic ratio is charge divided by mass, Q upon 2m आता है यहाँ पर. The charge, in case it is the nucleus, how many number of protons are present there? So n is the number of protons, and remaining terms when it is included, then a term Bn comes here, that is the nuclear magneton. The value of that is 5.05 into 10 power minus 27 Tesla, that is the nuclear magneton. We are also introducing additional Z value, again gyromagnetic ratio. Reason for that, when it is simple classical mechanics is there that we are discussing, then simply Q by 2m, that will be the gyromagnetic ratio. But when point charges are concerned, and especially the electron, proton and neutron, then they constitute spin motion as well as the orbital motion. So we have to add additional Z value or gyromagnetic ratio as capital Z in case of the nucleus, and small g in case of the electron with negative sign in case of the electron, with positive sign in case of the nucleons or in case of the protons. This whole value, it is Z into N into mass of proton divided by M, that is taken as G value, small g into beta N, and remaining factor, this is the angular momentum part, I into I plus 1. What is I? I is the quantum number. I की क्या है? Quantum number है. That can have value from plus I to minus I. Plus I, then I minus 1, I minus 2, reaching to 0, then reaching to the again minus I value. Those values it can have. So we are now what we are having. Here there is a G factor that contains gyromagnetic ratio. It contains the mass as well as mass defect of the nucleus, because that is the number of protons multiplied by mass of proton, that is the total mass of the nucleus. Then beta N is the nuclear magneton. It is similar to the Bohr magneton, and Bohr magneton it is for electron, and nuclear magneton it is for the protons. And remaining part, that is the angular momentum part. Remaining part is angular momentum part. So this is the Z value.
instead of taking it as rigorous, you can say this formula I into I plus 1, since it is a reflection of the quantum number, so simply I substitute here quantum number I. So mu that is equal to z into beta n into I. लिखा तो ये जाना चाहिए, लेकिन इसके बदले में क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन ये जो है एंगुलर मोमेंटम दैट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्वांटम नंबर, की क्वांटम नंबर की वैल्यू भरोगे तभी आपके पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए उसको हटा करके मैंने यहां पर क्वांटम नंबर जो है वो फिलहाल लिख लिया। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करनी है तो जैसे जेड डायरेक्शन, पर्टिकुलरली मेन डायरेक्शन लेते हैं तो म्यू जेड की वैल्यू जो है दैट इज टेकन along the z direction, so mu z is equal to z beta n into I z। g की वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा n की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन जो किसकी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की आएगी। द डायरेक्शन ऑफ द बोथ विल बी सिमिलर, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द magnetic moment vector, both will have the same directions. Now let us discuss the interaction of the nucleus with applied field. How the nuclei that is interacting with the applied magnetic field. So for a particular value of I am taking the value of I that is equal to 1. देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू आई प्लस 1, तो उसकी वैल्यू जनरल जो है h अपॉन 2 पाई नहीं कंसीडर करते हो आप कैलकुलेशन के लिए, देन इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2। कितनी वैल्यू होगी उसकी, अंडर रूट 2। और क्वांटम नंबर के हिसाब से जैसे उसने कहा कि पहले भी डिस्कशन में आया था कि क्या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस होंगी, वो डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं, वो उन्हीं डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है जिनमें आई की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल हो। अगर हाफ है तो हाफ इंटीग्रल होनी चाहिए, और इंटीग्रल इंटीजर है तो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए। मैंने आई की वैल्यू कितनी ले रखी है यहां पर 1, तो जब आप उसको आई इंटू आई प्लस 1 और उसका अंडर रूट लोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की, अंडर रूट 2। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो अंडर रूट 2 तो आ रहा है, लेकिन अंडर रूट 2 अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो कि किस किस डायरेक्शन में जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 3 डायरेक्शंस बनती हैं इसकी। आई की वैल्यू +1 हो सकती है, क्वांटम नंबर 1 है तो, या फिर 0 हो सकती है, या -1 हो सकती है, +i to -i। तो ये डायरेक्शन आ रही है +1 वाली, ये डायरेक्शन आ रही है 0 वाली, ये डायरेक्शन आ रही है -1 वाली। अगर मैं पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन काउंट करूं, दिस डायरेक्शन इज काउंटेड एज द z डायरेक्शन, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो क्लियरली उन डायरेक्शन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहां पर 0 वैल्यू केवल एक्स एक्सिस को कोरोस्पोंड कर रही है, लेकिन जो +1 और -1 वैल्यूज हैं दे आर नॉट इंडिकेटिंग द एग्जैक्ट directions as the directions we usually take, that the x axis, y axis and the z axis. So these are the 3 directions here taken. तो जब भी हम इंटरेक्शन न्यूक्लियस की अप्लाइड फील्ड में कर रहे हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है, तो न्यूक्लियस भी उसमें प्रोटॉन्स हैं दैट आल्सो रिस्पोंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो मैंने क्या कहा कि चार्ज बॉडीज हैं और चार्ज बॉडीज स्पिन कर रही हैं, तो उनका भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब भी किसी मैग्नेट एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की तरफ लाते हैं तो क्या होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ जो वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट, यानी अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। हाउ द एटम्स आर बिहेविंग, दैट्स द मेन पॉइंट हेयर। एटम जो है वो या जो भी न्यूक्लियस है दैट कैन अलाइन और दैट कैन नॉट, और दैट कैन अलाइन पैरेलल और दैट कैन अलाइन एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें 3 वैल्यूज ऊपर डिस्कस की हैं मैंने यहां पर। सो दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हियर, सो दैट इज द नॉर्थ पोल ब्लू हियर, दैट इज द साउथ पोल, एंड दैट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, आइदर इट इज अलाइनिंग। तो देखो ये अलाइंड स्टेट है जो आई की वैल्यू +1 को कोरोस्पोंड कर रही है,
इसमें साउथ नॉर्थ की तरफ है इसका और नॉर्थ साउथ की तरफ है, सो दैट इज द अलाइंड स्टेट. वट अबाउट दिस वन, इट इज नॉन अलाइंड स्टेट. नॉर्थ नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और साउथ साउथ की तरफ है, तो ये -1 जो वैल्यू है वो जो है वो नॉन अलाइंड स्टेट आ गई. एक और वैल्यू आई की 0. Since this is along the x-axis, applied field is along the y-axis, so this is having no effect on this I value. तो इस वैल्यू के ऊपर कोई भी अप्लाइड फील्ड का जो इफेक्ट जो वो नहीं पड़ेगा. अप्लाइड फील्ड का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, या तो इस प्लस आई की +1 वैल्यू पे या आई की -1 वैल्यू पे. तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है या तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेगा, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ के साथ मैच कर जाएगा, या फिर उससे एंटी पैरेलल होगा. क्या होगा, एंटी पैरेलल. जहां आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द रिपल्सन. नॉर्थ विल रिपेल नॉर्थ एंड साउथ विल रिपेल द साउथ. तो ये जो स्पिन स्टेट होगी, दिस इज द पर्टिकुलर स्पिन स्टेट बिकॉज द पार्टिकल इट इज स्पिनिंग. जो भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स जो भी हैं, दे आर इन द स्पिन मोशन. तो पर्टिकुलर स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो भी स्पिन स्टेट है, विच एवर स्पिन स्टेट इट इज, दैट स्पिन स्टेट इज हैविंग द मोर एनर्जी एंड दिस स्पिन स्टेट इज हैविंग द लेसर एनर्जी. इफ यू वांट टू शो इट बाय द सिंपल एनर्जी लेवल, so this is the case for the nucleus magnetic field, that when no applied field is there, it is simply a सिंगल स्पिन स्टेट दैट इज लाइंग देयर, वट एवर इट इज. जो भी उस न्यूक्लियस की पर्टिकुलर स्पिन है, उसकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली नॉन डीजनरेट स्टेट में है. सिंगल लाइन है यहां पर, सॉरी डीजनरेट स्टेट में है, इसकी एक ही एनर्जी है. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, या तो स्पिन उसके साथ अलाइन हो जाएगी, या मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन अप हो जाएगा, या क्या रहेगा, वो नॉन अलाइन स्टेट में रहेगा. अगर वो नॉन अलाइन स्टेट में रहेगा तो उस स्पिन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी. अगर वो अलाइन स्टेट में रहता है तो उस स्पिन स्टेट की एनर्जी कम होगी. सो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर magnet it is behaving, either it is aligning with the applied magnetic field or it is aligning anti-parallel to the applied magnetic field. Whatever anti-parallel is there, that is higher spin state, and whatever aligned state is there, that is the low energy spin state. तो आपके पास यहां पर दो स्पिन स्टेट जो वो जनरेट हो गई है यहां पर, एक अलाइंड और एक नॉट अलाइंड. इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, दैट कैन बी फिल्ड बाय द अप्लाई ऑफ सम एनर्जी. तो यहां कोई ना कोई रेडिएशन यूटिलाइज करके एक स्पिन स्टेट को दूसरी स्पिन स्टेट में चेंज कर सकते हैं. ये तो बात रही कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइंड हुआ या नॉन अलाइंड हुआ, लेकिन स्पिन के ऊपर क्या फर्क पड़ा. एक में स्पिन जो है वो अप होगी और एक में स्पिन जो है वो डाउन होगी. जैसे सर्कल मान लीजिए घूम रहा है, तो सर्कल की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो दो डायरेक्शन जो है वो दो स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इफ वन इज अलोंग द क्लॉकवाइज, अनदर इज अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज है वो डाउन को आएगी, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अप साइड को जो है वो आएगी. तो ये दो स्पिन स्टेट को जो है वो शो कर रहा है. सो दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट or a nucleus or a nucleon in presence of the applied magnetic field. Again coming to the some calculation part here, it is interaction of the nucleus field with the applied field. So interaction, it is given as multiplication of the magnetic moment of the nucleus multiplied by the applied magnetic field. जो उसकी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में उसने जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट जो कंसीडर किया हुआ है. तो म्यू जेड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, इट इज जी इंटू बीटा एन इंटू आई जेड, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर. सो दैट इज द इंटरेक्शन, और दैट इंटरेक्शन इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम when a magnet that is placed in another magnetic field. The separation between the energy levels is given as the transition from one state quantum number to the another state. तो एक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आई है तो दूसरे उससे -1 होगी. क्या कहा था मैंने कि क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं,
प्लस I2 माइनस I। तो अगर एक क्वांटम नंबर 3 है तो उससे कम क्या होगा 2। तो जो ट्रांजिशन होगी दैट ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 2 to 3, 2 to 1। देयर शुड बी ए गैप ऑफ सिंगल वैल्यू फॉर द क्वांटम नंबर। So change in the energy state from one state to another state, it is governed by the quantum number, that is Iz, particular value, and another value is the Iz minus 1. So the separation delta E between the levels, it is energy where the quantum number value is I minus energy where the quantum number value is I minus 1. So substituting these interaction values, it is Z beta n Iz into Bz माइनस जी बीटा एन आई जेड माइनस 1। तो क्वांटम नंबर की एक वैल्यू मैंने यहां पर कम कर ली। ये जरूरी नहीं है कि आपने जेड डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है, आप केवल आई की वैल्यू लेकर भी यहां पर जो वो चल सकते हैं। यहां पर यू कैन सिंपली राइट आई इंस्टेड ऑफ द आई जेड। सो डेल्टा ई वैल्यू दैट इज इक्वल टू जी बीटा एन इंटू वी जेड। सो सी इट इज फ्री ऑफ द क्वांटम नंबर हेयर। इसमें कोई भी क्वांटम नंबर की डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। जो गैप है किसके बीच में, दो स्पिन स्टेट के बीच में। पीछे अभी डिस्कस किया कि एक क्लॉकवाइज स्पिन आ रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आ रही है, रिवर्सल ऑफ द स्पिन है। दोनों स्पिन स्टेट जो अलग अलग एनर्जी को जो वो शो कर रही हैं। सो व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट इज देयर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटम नंबर आई। सो इट इज इक्वल टू जी विच इंक्लूड द जायरोमैग्नेटिक रेशियो एज वेल एज मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। Beta n, it is nuclear magneton. Bz, it is applied field strength। इसका मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच में गैप कितना होगा वो डिपेंड करता है जी वैल्यू के ऊपर, बीटा एन के वैल्यू और बीजेड के ऊपर। इसमें वेरिएबल क्या है, पर्टिकुलर एटम के लिए जी वैल्यू कांस्टेंट होगी, बीटा एन वैल्यू कांस्टेंट होगी, बीजेड वेरिएबल है। इसका मतलब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते जाओगे द सेपरेशन बिटवीन द टू लेवल्स विल वेरी। Separation between the two levels will vary. So here you can calculate the frequency. So delta E divided by H, it will leave the mu value. So mu frequency is equal to Z beta n into Vz into H. So if you calculate for certain nucleus by putting some fixed values here, जो भी न्यूक्लियाई हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड जनरली 1 to 5 टेस्ला होता है। कितना होता है, 1 to 5 टेस्ला। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो जी वैल्यू इट इज 5.58। कितनी होती है, 5.58। तो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन की गई है। सो 5.58 दैट इज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन 5.05 10⁻27 एंड 2.34। व्हाई इट इज बीइंग रिटन एज 2.34। 1 से 5 तक है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहां कैलकुलेशन में कैंसिलेशन हो जाए आसानी से उसके लिए वैल्यू 2.34 ली है। अदरवाइज एनी वैल्यू कैन बी टेकन बिटवीन 1 to the 5 डिवाइडिंग बाय एच वी आर गेटिंग 100 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब कि जो गैप होगा एक स्पिन स्टेट और दूसरे स्पिन स्टेट में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द 100 मेगाहर्ट्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से ये वैल्यू जो 100 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू है दैट कैन बी वेरिड। तो दो तरीके होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए। या तो आप ऐसा करो कि मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते जाओ ताकि रेजोनेंस का पता चल सके कि कहां उनके बीच में जो वो रेजोनेंस हो रहा है या किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस जो वो हो रहा है। या फिर 100 मेगाहर्ट्ज जो वो इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें ताकि ये क्लियर हो सके कि किस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे जो वो रेजोनेंस पॉसिबल है। अभी तक रेजोनेंस टर्म क्या है थ्योरेटिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स के तौर पर हमने डिस्कस किया है, एग्जैक्ट अभी तक इसका जो वो डिस्कशन नहीं आई है। दैट वी विल डिस्कस इन द लार्मर प्रिसिशन इन द नेक्स्ट लेक्चर हियर। तो दो तरीके होते हैं, या तो फिक्स फ्रीक्वेंसी का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी। दोनों में से कोई भी टर्म वेरी की जा सकती है। पर यहां पर सिंपल है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते जाओगे ये फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन जो वो होती जाएगी।
या इनके बीच में गैप जो वो इंक्रीज होता जाएगा. सो हियर सी सिंपल प्रेजेंटेशन. दिस इज द लाइन दैट इज शोइंग द magnetic field or energy level of the spin energy level of the nucleus. When you apply field is being applied, then there is a split in the two spin state. पहले spin state जो वो सिंगल है, लेकिन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जो स्पिन स्टेट जो वो स्प्लिट हो गई, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज. वन इज अलाइंड, वन अनदर इज द नॉन अलाइंड. The gap between these two is represented by how much is the strength of the magnetic field. If you apply more magnetic field or increase the magnetic field, the gap between the two spin state it is going to increase. So that is showing that it is directly proportional to the applied magnetic field. So gap between the two spin state it is increasing. If you further increase the magnetic field, again the gap is going to increase. So this is increase in the you can say a separation between the two spin states by increasing the magnetic field. Remaining we will discuss in the next session.